السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس وقت میں مسجد میں موجود ہوں اور اللہ کے راستے میں آیا ہوں۔ تشکیل میری کل رات کو ہی ہو گئی تھی اور آج ہی میں پہنچا ہوں۔ سرگودا سے نکلا تھا، کل رات کو لاہور پہنچا ہوں، رات گھر رکا تھا، صبح نکلا ہوں، باقی کام تھے وہ مکمل کیے ہیں۔ اس کے بعد جمعے کے بعد ابھی میں آ چکا ہوں جماعت کے ساتھ، اور آپ کو تھوڑا جماعت کا انوائرمنٹ، تھوڑا سا ماحول دکھائیں گے، تھوڑا سا بتائیں گے کہ جی جماعت میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں 3 دن کے لیے، جسے سے روزہ کہتے ہیں، مطلب سے روزہ لگانے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 2 سے 3 دن کا ولاگ ہوگا، شروع سے لے کر لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ابھی گشت پر گئے ہوئے تھے اور ابھی گشت سے واپس آئے ہیں، اور اب یہ عصر کا ٹائم ہے، عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ گشت پر گئے ہیں ہم، آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں۔ پہلا بندہ ہمیں ملا ہے، اس کا گھر کا دروازہ نوک کیا ہے تو وہ کہتا بھائی کون ہو آپ، ادھر سے آ گئے ہو، مطلب بڑا نا روڈ بیہیو کر رہا تھا۔ اسے میں نے کہا ہے کیونکہ میں متعلم تھا، مطلب متعلم کہ میں نے جو سا لوگوں کو دعوت دینی تھی اور ان کو مسجد کی طرف بلانا تھا کہ جی مسجد میں جماعت آئی، آپ آ جائیں اور بیان ہو رہا، آپ بات سنیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی تو دین میں ہی ہے، تو دین کا کام ہے، آپ آ جائیں۔ تو وہ میں کر رہا تھا، تقریباً کوئی 5-10 گھروں کے اندر جو سا جا کے دعوت، گھروں کے اندر نہیں، لائک نوک کر کے جو مرد حضرات باہر آتے ہیں ان کو دعوت وغیرہ دے۔ ابھی وہ گشت کر کے فری ہوئے ہیں۔ اچھا، گشت کرتے ہوئے میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ یار ذرا تھوڑا سا آکورڈ سا لگتا ہے کہ اب ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو میں دیکھ خود رہا تھا، ساتھ میں نے کیمرہ بھی اٹھایا ہو، اس وجہ سے وہ ذرا نا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تھوڑا سا آکورڈ سا سین ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے وہ ویسے ہی 1-2 ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں، مطلب کہ دعوت دیتے ہوئے کوئی ولاگ نہیں کیا۔ میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا۔ بھائی صاحب کامیابی تو صرف دین میں ہے اور اللہ کے راستے میں۔ ابھی نماز عشاء کی بھی پڑھ لی ہے، تعلیم بھی کر لی ہے، اور اب بس چائے پیئیں گے، چائے بن رہی ہے اور اس کے بعد سوئیں گے۔ چائے وغیرہ پی لی ہے، اب بستر بھی بچھا لیا اپنا، بس جا کے سونا ہے اور سکون کی نیند لینی ہے آج بڑے عرصے کے بعد۔ ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے شاید زندگی میں کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو نہیں ہو گیا، چلتے چلتے زندگی ایک دم سے سٹک ہو گئی۔ سکون والا ماحول بنانا تھا، آپ کو سکون کا ٹیسٹ کرانا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے سکون کا ٹیسٹ بنانا، سکون کا ٹیسٹ آپ لیے، آپ کو جو ہے نا سکون کا ٹیسٹ وہ آپ کو اللہ نے ریمائنڈ کروانا تھا، اس لیے تھوڑا سا ذہن ہلا ہے۔ ذہن نہیں ہلا، پوری زندگی ہل گئی ہے، پوری زندگی نہیں بہت ہیوی سین ہوا ہے۔ سارے سین کی ریکوری کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ میں پتہ کتنی دیر بعد آیا اس روزے پہ، کتنے عرصے بعد آیا، 3 سال بعد، 2 سال 3 سال 2-2.5-3 سال ہو گئے۔ شادی کے بعد میں نے روزہ نہیں لگایا، شادی کو آلموسٹ 3 سال ہونے والے۔ ایسا میں گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کی جو نا ریکوری کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے، ریکوری کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہوا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سچویشن میں سے کیسے نکلوں گا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نکل جاؤں گا، یقین ہے، لیکن مجھے اس ٹائم کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، صرف اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی۔ اگر اللہ نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے سارا مسئلہ تو ریکور ہوگا، سارا مسئلہ اللہ کے حکم سے ریکور ہوگا۔ انشاءاللہ اب نیت تو یہ کی ہے کہ بس اب نا صرف یہی کام کرنا ہے اور کوئی دوسرا کام کرنا ہی، دوسرا کام یہ دنیا داری، یہ پیسہ، یہ بزنس، یہ پلاٹ، کچھ نہیں ملا اس کے اندر سے سوائے ضلالت کے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنا لوگوں کے ساتھ کرنے کے باوجود، سارا کچھ پھر بھی اینڈ پہ صرف بے عزتی اور ضلالت یہ حصے میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ پریشانی اور ٹینشنیں۔ دوسرا کام اختیار کرنا ہے، لیکن اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے۔ چلے جو ہوا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے، جو آگے ہوگا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور نکالے، اس دلدل کے اندر سے نکال دے، دلدل میں پھنس گیا ہوں بڑا بڑا۔ وہ جو اللہ چاہتا ہے، تو یہ اللہ نے آپ کو ریکوری کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو اشارہ دیا، اللہ نے ریکوری کے اعتبار سے آپ کو اشارہ دیا، تو آپ جلدی سے سو جائیں، اور مزید اس اعتبار سے آپ کو ٹپس
दूंगा कल। मैं बस सोने लगा हूँ सो जाइए। क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ इस टाइम। सेकंड डे शुरू हो गया हुआ है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की है, फजर का टाइम अज़ान हो रही है। हमारे सामने नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा, कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा, सच बोलने का क्या फ़ायदा, हलाल कमाने का क्या फ़ायदा। इसके फ़ायदे जब हमारे सामने होंगे तो फिर उस पर अमल करना आसान है। फिर थोड़ा हमारे साथ तालीम में शामिल हो जाए, क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह तो अभी लेने आए। अभी सुबह फजर के बाद बयान हुआ, बयान के बाद साथियों ने मशवरा किया, सारे दिन की तरतीब बनाई है। उसके बाद अभी ज़ोहर से पहले का टाइम है और तलीम हो रही है। तलीम के दरमियान में मैं और एक साथी और हम गए थे अभी गश्त पर, जाकर दावत देकर आए हैं लोगों को। अभी दोबारा मस्जिद आ गए, तलीम हो रही है और तलीम में दोबारा शामिल होंगे। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा। कि इंशाल्लाह ताला ना देखिए अल्लाह के रास्ते में बड़ी बड़ी बात भाई ने की कि हमें दुनिया की जो सलाखतें अल्लाह ने दी हैं ना, हम उसको दीन में इस्तेमाल करें, और दीन में जो सलाखतें लगाएंगे उसका दीन में भी, दुनिया में भी नफ़ा होगा और आखिरत में भी नफ़ा होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफत थी कि वो जब इस्लाम लाने से पहले थे ना, उनको गुस्सा बहुत था, तो जब इस्लाम कबूल कर लिया वो चीज़ बरकरार थी उनके अंदर गुस्से वाली, लेकिन फिर उसी को काफरों के मुकाबले में इस्तेमाल किया। तो इसलिए हम सब कोशिश करें जो अपनी सिफ़ात है इस तरह से अल्लाह ने दी हैं उसको दीन के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ऐसे ये नासिर भाई हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, अभी अमीर साहब बन गए और आज हमारी जमात में अमीर साहब हैं, तो इनके साथ हमारा वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह यार अब आता रहूँगा। मैं ना हो गया था ज़रा ना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बिजनेस में गया हूँ ना, तो ऐसे गया हूँ फिर ऐसे आया हूँ, फिर ये मतलब ये होता रहा ना, तो वो खोपड़ी जो सी थी ना वो बड़ी ख़राब हो गई। बस मैं आया नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे लाया गया मैं, क्योंकि मैं इतने अरसे से नहीं बेसिकली इधर से गया हूँ ना, जब लाहौर से मैं गया हूँ सरगोदा, उधर जाके मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। तकरीबन 3-4 साल 5 साल हो गए हैं सरगोदा में, तो अब ना मैं फेडअप हो गया हूँ उधर से। मेरा ना अब दिल नहीं करता कारोबार करने को, ये चीज़ें करने को, ना नफ़ा नुकसान ये कर करके ना वो ख़त्म हो गई है, अब ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब बस सुकून चाहिए ज़िंदगी में। अल्लाह पाक ने बेटी भी दे दी है, शादी भी हो गई है, तो अब नहीं समझना तो पता नहीं फिर कब समझना है। पहले जब आते थे तब तो बस ठीक है, अल्लाह ताला ने बुलाया, आसिफ भाई की मेहरबानी, वो पीछे पड़े रहते, वरना हम तो अल्लाह माफ़ करे। ये भी हमारे साथी हमारे साथ आए हैं जमात में, अभी ये गश्त करके आ रहे हैं, मैंने भी अभी गश्त किया है। इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा टाइम गुजर रहा है अल्लाह के रास्ते में, दुनिया में और अल्लाह के रास्ते में आकर इनको क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है। जी पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से अल्लाह ताला ने हमें चुना है। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में निकलने के लिए हमें जो है ना वो कबूल किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद ये बात है कि अल्लाह ताला ने गेस्ट की दावत के लिए कबूल किया है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद से निकाल के लोगों से मुलाकात करवाई है। आज जो है ना हमें 2-3 लोग मिले हैं ऐसे कि उनको यंग यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़ने वाले थे, 2 लड़के हैं, दोनों कॉलेज के पढ़ने वाले थे। उनसे काफ़ी बात हुई है, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे अज़म का इरादा किया है। उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में और मस्जिद के साथ खुसूसी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आप जो है ना हम रमज़ान में भी आया करेंगे और रमज़ान के बाद भी आया करेंगे। और यही असल कामयाबी है जो मुस्तकिल मिजाजी से की जाती है। कहते हैं कि छोटे से छोटा अमल करना, अमल के साथ करना, उसमें कामयाबी है। बड़े से बड़ा अमल एक दफ़ा कर लेना और बाद में उसको छोड़ देना, ये भी कामयाबी थोड़ी है, ऐसा ही है, गुमराही है। भाई अल्लाह ने हमारी जो कामयाबी दीन में रखी है, और दीन की जो बुनियाद है वो कलमा तैयबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे भाई जब मैंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह से इकरार किया होगा, अल्लाह पाक आपके अहकामात को मानेंगे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ों में चल के दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करेंगे। अब मेरे भी अल्लाह के हुक्म और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़िंदगी में आ जाएँ, इसके लिए मेहनत है। पहले अल्लाह पाक इस काम को करने के नबियों को भेजते थे। अब मेरे भाई अब मेरा और आपका यकीन है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आलमी नबी हैं, तो ख़त्म नबूवत की बरकत से दीन की मेहनत हर कलमा को ज़िम्मे है।
इसके लिए मेरे मस्जिद में बात हो रही है दिन के महीने के बारे में। हमारी गुजारिश है मसाला नगर चलने से बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। चलें ज़ोहर के बाद तलीम हुई थी, तलीम के बाद मुज़ाकरा हुआ था, मुज़ाकरा के साथ साथ गश्त भी साथ ही करते रहे थे। अभी 4 बजे अमीर साहब ने दोबारा कहा था कि आ जाना, मतलब कि उन्होंने घंटा कहा था चलो रेस्ट वगैरह कर लो। अभी 4 बज गए, अभी दोबारा मस्जिद में जा रहे हैं। मैं तो लेट गया था तो अभी उठा हूँ, ज़रा वज़ू वगैरह करता हूँ, उसके बाद बाहर निकला था। ज़रा मौसम बड़ा अच्छा है, मैं कहा ज़रा मौसम वगैरह भी देखता हूँ कैसा चल रहा है। बारिश हुई है हल्की हल्की और ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये सुकून हो गया ज़िंदगी में ना, मज़ा आ गया। आया हूँ कल तो ज़रा थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में आया हूँ तो उसके अंदर मैं कल का दिन काफ़ी अपसेट रहा था। आज दावत के बोल बोले हैं, सुबह से उठे हुए हैं, पूरा दिन गुजर रहा है तो अब ज़रा सुकून आना शुरू हुआ है और मूड भी अच्छा हो रहा है। लोगों से इताअत करवाने के लिए अम्बिया को भेजा करते थे। ये अल्लाह की सुन्नत है ताकि वो आके उस वक्त के लोगों को समझाएं और अल्लाह का तारुफ करवाएं। तमाम नबियों ने कलमा पढ़ा और पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई बंदगी के लायक नहीं। अल्लाह ताला हमको ऐसी ऐसी चीज़ दिखा देते हैं कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी वो चीज़ नहीं देख सकता। अभी हमारे कुछ साथी गश्त पर गए हुए थे, हमारे एक भाई हैं, इनको उन्होंने नकद वसूल किया और ये आए हैं मस्जिद में। इन्होंने मेरी बात सुनी है क्योंकि मैं बैठकर बात कर रहा था, तो अब ये नमाज पढ़ने लगे हैं। तो भैया आप बताओ आपको कैसा लगा दावत के बोल सुनकर? बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिल गया। हाँ, अब बस कोशिश करनी है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो और नमाज नहीं छोड़नी, बस नमाज पढ़ते रहना हर टाइम। 5 वक्त की नमाज बाद नमाज पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सारा दीन समझ में आ जाएगा। असर की नमाज पढ़ के अभी फ्री हो गए हैं, उसके बाद बयान था, बयान भी हो गया है। अभी ज़रा बाहर बैठे हुए हैं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, इफ्तारी करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं आज इफ्तारी में क्या है। मुझे वो भी नहीं पता क्या है। कल अच्छी थी इफ्तारी और आज भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। अल्लाह के रास्ते में तो हर चीज़ ही अच्छी है। इफ्तारी का सामान तैयार हो रहा है, इफ्तारी वगैरह तैयार हो रही है, खिदमत वाले लड़के कर रहे हैं। अभी ये दरी बिछी है, इसके ऊपर दस्तरखान बिछेगा, इसके ऊपर इफ्तारी वगैरह लगेगी। सही बताया? वो मैं ना VIP हो गया, ओके रिपोर्ट है। नहीं पकाया क्या है? ये कटे दा गोश्त नाल दाल चनिया दी ते चावल वाइट। हाय हाय हाय, आज तो मजा आएगा इफ्तारी का। नीम तैयार होगी बहुत। गोश्त गला गुला कोई नहीं है। नहीं पूरा रेडी हो गया, ये खाएंगे, अब खुद बताएंगे कुछ है तैयार हुई है अभी इफ्तारी में देखते हैं ना। हाँ इफ्तारी में मैं आप बेहोश होने वाला हूँ, रोजा लगा हुआ है भाई। बेहोश होने वाले हैं अभी इफ्तारी करेंगे फिर सो जाएंगे। नमाज अब पढ़नी, सोना किधर है। वैसे एक चीज है कि यहाँ पे आके ना सोने का, जब हम यहाँ पर आते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता सोने का। नहीं टाइम नहीं इतना मिलता। अभी जब नमाज पढ़ के फिर आप सोने का जब कहेंगे ना फिर नींद नहीं आ पाएगी, फिर ऊपर फिर जाना हो जाएंगी, फिर नमाज पढ़ेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन। कुछ ये मौलवी भी नहीं सोने देते। मौलवी बहुत बड़ी बेर है, ये हमको बहुत परेशान करते हैं। अभी मैं खाना लेके आता हूँ। तेरे रस्ते में मेरे मौला। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तारी करके नीचे आ गए हैं। अभी नमाज होनी है, फिर नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। अभी मगरिब पढ़ेंगे। बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रमज़ान का महीना है, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, मज़ा आ रहा है। जितनी टेंशनों में था ना उतना ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, टेंशनें ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज दावत दी है, दावत के बोल बोले हैं बड़े अरसे के बाद, आलमोस्ट तकरीबन कोई 3 साल बाद। मैं 3 साल से पता नहीं किधर था, बहुत बुरे हालात में था। शुक्र अल्लाह पाक हालात अच्छे हो गए हैं। अभी सब साथी सो गए हैं, मैं भी बस सोने लगा हूँ। तो सोने से पहले वज़ू करके सोना चाहिए, सोने की दुआ पढ़ कर सोना चाहिए, सबको माफ़ करके सोना चाहिए, सबसे माफ़ी मांग कर सोना चाहिए, तहज्जुद की नीयत करके सोना चाहिए। आज लास्ट डे है, इंशाल्लाह कल सुबह फजर के बाद वापस जाएंगे। अभी सारी वगैरह कर ली है, फजर की नमाज का टाइम होने वाला है, अज़ान होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वगैरह करके फ्री हो गए हैं और मौसम बड़ा फिट, ऐसे जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं। मच्छर ने बहुत ज़्यादा जीना आराम कर दिया, ये तड़फड़ हो गए हैं। अब चलो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के रास्ते में चलें। अभी ये मच्छर भी कि कुछ भी नहीं है। ये मच्छरों ने हमारे नबियों पंगरों में भी अजाब डाला था। चलो कोई नहीं,
مچھر کافی تھا لیکن کوئی نہیں، پھر بھی اچھا گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے، اس کی وجہ سے اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا. تھوڑی بہت تو چلو مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہے. کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں. یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یار سید کچھ ایسا ہے کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے فری ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تعلیم کر رہے تھے. یار تو کیا کر رہا ہے یار؟ میں وضو کر رہا ہوں. کر لے یار، پھر میری ڈیوٹی ہے آج میری خدمت میں، خدمت کا سامان وغیرہ لینے جانا ہے، مطلب کہ افطاری کا سامان اور رات کے کھانے کا سامان وہ لینے جانا ہے. جو سے دوسرے ساتھی ہیں وہ فری ہو کے آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو آپ کی طبیعت نہیں صحیح، آپ آرام کرو آج. تو کوئی ڈر نہیں، آج دی دیہڑی ہے جی، پھر جا کے دوائی لے لیں گے. بولو کیا رکھا دوائی بھی نہیں نہ کھاتی ہے نہیں. کیوں میرے صاحب؟ پہلے باہر سے جا کے لے آتے ہیں نا چیزیں، پہلے چیزیں لے آتے ہیں پھر اس کے بعد مینیج کر لیتے ہیں. سالن پکا لیتے ہیں آپ؟ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے. پکا دو نہیں پکوائے گی، کوشش ہم کریں گے. اگر کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت ریسیپی دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ سے ہی. کیا نہیں جی، بس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلے اللہ پاک اللہ کا نام لے کے کاٹ کے ڈال دیتے ہیں. اللہ کا نام لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. خدمت کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے. مینیو میں بنانے کا ارادہ ہے چکن، ماشاءاللہ. اس کے ساتھ روٹی بنے گی، تاری بنے گی، ساتھ میں کوئی پانی وغیرہ شربت وغیرہ وہ بنے گا. ہاں جی آج لاسٹ ڈے ہے، افطاری آخری ہے، صبح سحری بھی آخری ہے. صبح سحری کر کے نکل جائیں گے واپس گھر میں، اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے. آپ مسجد ابراہیم آتے ہو نا؟ شب جمعے کے لیے آتا ہوں. شب جمعہ کے لیے. یہ میاں رفیق صاحب والی 16 نمبر سون ہمارا حلقہ ہے. میں بھی ادھر ہی ہوتا تھا لیکن پھر میں چلا گیا تھا، اب ادھر ہی ہوا کروں گا. چلیں آیا کرو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. میں ذرا بائک دیکھوں، دھوپ تو نکل آئی ہے لیکن بارش کی وجہ سے نا موسم ذرا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی فیل آ رہی ہے. بلکہ اندر مجھے پنکھا لگا ہوا تھا نا، ٹھنڈ لگ رہی تھی. بائک نکال رہے ہیں ابھی، بائک نکال کے نکلنا ہے سامان لینے تاریخ کا. یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا. یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے راستے میں. یہ کیا کر رہے ہیں بھیا یہ ہم دنیا کاٹ رہے ہیں، ہم جماعت میں ہیں ہم جی، اور خدمت میں ہماری ڈیوٹی ہے تو ہم یہ دنیا کاٹ رہے ہیں. دھنیا کاٹ رہے ہیں آپ؟ یہ فی الحال تو اس کو توڑ رہے ہیں. صحیح. یہ ہم یہ سب آلو چھیل رہے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ اور جناب یہ سبزی تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. ہاں جی. ہم یہ ہانڈی کتنے تیار وقت کریں. میں یہ تیار ہو جائے گی؟ انشاءاللہ یہ افطاری سے پہلے سب کچھ تیار ہو جائے گا. افطاری سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا. جی. ابھی سالن بھی پکانا ہے اور افطاری کا بھی سارا. افطاری کا تو چلو وہ پھل وغیرہ ہی ہے، تو سالن جو سا پکانا ہے وہ بس اس کے لیے کام شروع کر دیا انشاءاللہ. اصل افطاری سے پہلے مکمل تو کر لیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گشت پہ بھی شریک ہوں. گشت میں؟ ہاں جی ہاں گشت میں تو ہے. انشاءاللہ یہ سارے کام ہو جائیں گے. بس یہ جو کٹائی والا کام ہو گیا، یہ کٹائی والا کام جو خطرناک. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. جی جی. میں جو یہ دعا پڑھے گا، من دون اللہ کاشفہ، من دون اللہ کاشفہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے کھانے کے اندر لذت بھی ڈالیں گے جی. اور وہ کھانا بھی اچھا تیار ہو جائے گا. پکانا ہمیں آتا نہیں ہے. نہیں یہ اب کیا کرنی ہے، دھنیا ایسے نہیں کرنی تھی. چلو خیر میں آپ کو کاٹ کے دوں گا. یہ آپ کو آتا کاٹنا؟ یہ ایسے نہیں ہے، چھری کے ساتھ ایسے پکڑ کے؟ ہاں ایسے پکڑ کے. ہاں نا وہ ایسے ہو جائے گا نا. ہاں ایسے کرو نا، ایسے پکڑ کے ایسے. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پورا پاکستان دیکھے گا بھائی.
पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देखेगी। ये तबलीग का काम हो रहा है, इसको पूरी दुनिया हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह ने कामयाबी किस में रखी है जी? दीन पे दीन में रखी है। जो दीन पे अमल करेगा अल्लाह उसको दोनों जहानों में कामयाब करेगा। अल्लाह के राह से निकलते 4 काम सबसे ज़्यादा करने हैं। सबसे पहले दावत इल्लाह, सबसे ज़्यादा क्या किस पे टाइम लगाना है? दावत पे। फिर उसके बाद जो टाइम बच जाए तालीम व तालीम, सीखना सिखाना। सही। फिर उससे टाइम बच जाए ज़िक्र इबादत, अल्लाह का जिक्र करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना। सही। और उससे टाइम निकल जाए फिर खिदमत करना। खिदमत। हाँ, तो अभी जो हम जो अमल कर रहे हैं ये उन 4 अमाल में से एक अमल खिदमत का चल रहा है। अच्छा। मैं जो खिदमत करता है अल्लाह पाक उसको खुद मिलते हैं, और खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से तकब्बुर ख़त्म होता है, खिदमत से अल्लाह पाक जज्बा पैदा करते हैं कि घर के अंदर भी हम जाके खिदमत करने वाले बने। जी जी। हाँ जी, अब घर भी जाएंगे और घर जाके भी खिदमत करेंगे सब। टेंशन न लें, पानी शानी अब खुद ही पी लिया करेंगे उठ के। अब ये नहीं करना नहीं, ये जो आपका ये जो धनिया काट रहे हैं घर जाके भी ऐसे ही धनिया काटेंगे। घर जाके धनिया नहीं काटेंगे, घर जाके जरा पानी खुद उठ के पी लेंगे और बर्तन उठा लेंगे, बर्तन रख लेंगे, खाना खुद गर्म करके खुद ही खा लेंगे। क्या बात, क्या शुरू कर देंगे। सुन्नत के मुताबिक आप काम करेंगे। सुन्नत के मुताबिक। देखे ना ये धनिया कट रहा है, ये गुरूर और तकब्बुर का ये छुरी जो भी चल रही है ना, ये उसके ऊपर चल रही है, नफ्स के ऊपर चल रही है। ये मतलब भी दोने हैं। ये धनिया नहीं कट रहा, ये नफ्स कट रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने रोना अफ्तारी करना है, और मुझे नहीं लगता ये शाम से पहले कुछ तैयार हो जाए, और कोई भी मसला नहीं। ये बस ये हो गया तैयार, अल्लाह को याद करके ऊपर उसको गोश्त तो के रखे आप, तो हांडी तैयार हो जाएगा। काफी है ये और बनाना? नहीं, काफी ये सब करके फिर शाम को हम दावत देंगे लोगों को। ठीक है, आपको सवाल के टूर करा दूँ। किसका टूर? ये जो अभी रात को सारी साफ सफाई भी करनी है। हाँ, सफाई करके ये देखें भाई माशाल्लाह ताज़ी मस्जिद तैयार हुई है। ये किचन है, ये मौलवी साहब लगे हुए हैं आलू धोने। ये हमारा एक साथी ढेर बीमार हुआ है, ये देखो इसकी आदत बहुत ज़्यादा खराब है। अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ते अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। अरे भाई आपकी तबीयत ठीक हुई है कि नहीं? बहुत माड़े हो गए हो यार बस। ये प्याज क्या कर रहा है आपके साथ? ये प्याज तो हमारा बुरा हाल कर रहा है ये तो रोने पड़ रहा है भाई। ये धन हौसला उन लोगों का जो काटते हैं, क्यों भाई अंकल? सही बात है। और ये तो बुरा हाल हुआ औरतें ही काटती हैं ज़्यादातर। ये औरतें आप गल पाए इन्हें कहे वाले औरतों ने भी आटे लिए पकाए, गंढे लिए कट्टे, उन्होंने भी पता है भी प्याज कटने बड़े औखे हैं। मैं तो गल जानना भी जरा है ना बहुत औखा काम है, जो ये रोटी पानी पकाना बहुत औखा काम। क्यों मेरे साथ? बिल्कुल ये तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए अजर भी बड़ा है ना, अजर तो फिर अजर भी बड़ा है ना फिर। अल्लाह पाक ने मेरी आपकी बल्कि दुनिया के सारे इंसानों की 100% कामयाबी पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखी है। दीन में सबसे दीन की बुनियाद कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी ये खाना पकने रख दिया और अभी असर का ऐलान है मेरा, तो मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ। अब वुज़ू मैंने कर लिया, आपने आना नीचे? हाँ आना है, अभी गश्त में जाना है। गश्त में जाना है आपने? हाँ 4 भी लग के 5 बजे। ठीक है, मैं फिर नीचे जा रहा हूँ, मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपके मेरी हम सब की कामयाबी पूरे के पूरे दीन में रखी है। दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा मुबारक मेहनत से। इसी मेहनत के बारे में बात होगी, सब तशरीफ करके इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। तो रिस्क का वादा अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह ताला उसको ले के भी आजमाते हैं और दे के भी आजमाते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो अपनी फ़िक्र के लिए, अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फ़िक्र के लिए जो है ना अपनी इस्लाह के लिए हमें जो है
अपने रास्ते में आने की तौफीक नसीब फरमाई। जाओगे फिर उठा देंगे एक दिन चुपचाप पड़े साथी लेके आओगे थे इंशाल्लाह। हाँ बोलता रहना ना, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, इतना बोलता रहना, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। हां ठीक है। अब बंदे बैठे हां पहले लोग चार भी है ऐसे काम निकाल कर अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक तो है, क्या रखे ना बंदे इस्तेमाल अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है। अभी गश्त का अमल है और गश्त करने जा रही है, सारी जमात गश्त पे जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। ये गली कर ले, क्या ख्याल है? तो मुतकल्लिम कौन हो जाएगी? मैं हो जाएगी, कौन हो जाएगी? आप मैं हो जाएगी, कौन हो जाएगी? अभी गश्त पर हम निकले हुए हैं, तो गश्त का यार क्या तरीक़ेकार होता है, क्या सिचुएशन होती है उसकी, मतलब कि उसके अंदर क्या करते हैं, कोई एक दो पॉइंट्स तो बताओ ज़रा। गश्त में यही है कि अभी जैसे कि हम मस्जिद से निकले हैं, हमने दुआ मांगी है, ये गश्त का बहुत बड़ा अमल है। और जाते हुए जो है ना ही फिक्र हो कि जिसको हम दावत देने जा रहे हैं अल्लाह ताला उसका दिल नरम कर दे, हमारे पास मस्जिद में आ जाए, वो भी नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए, बस यही है। और तीसरे कलमे का विर्द होता है कि तीसरा कलमा पढ़ें और वापसी को जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इसलिए कि बड़ा अमल था, कोई गलती को कहीं कमी पेशी रह गई नहीं। नमाज पढ़ के जिंदगी में बैठा हुआ अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। मैं वो चुप ही नहीं पीता, बोले गया बाबा क्यों ले लो, अल्लाह मालिक है, सब खालिक है। अभी गश्त करके वापस आ गए हैं और अभी असर की नमाज का टाइम हो गया है, असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बयान होगा, बयान के बाद इफ्तारी की तैयारी करेंगे, वापस जाके ऊपर सारा आसमान वगैरह करना है क्योंकि खिदमत में आज हमारी ड्यूटी है, तो वो भी काम करना है यार, खिदमत में आना है फिर। हाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला। असर की नमाज हो गई है, बयान हो गया है, अब ज़रा इफ्तारी का स्टेटस चेक कर रहे हैं। हाँ जी अमीर साहब बताएं, ऑर्डर लगाएं। ये मेरे ख्याल से सालन रेडी हो गया, आय हाय 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 हाय, लेवल हो गया। तो भाई उसकी शक्ल ही बता रही है, लेवल हो गया। ये शरबत बना रहे जी, ये जामा शरीफ बना रहे हैं भाई, 2 डोले पाते हैं खंड से। मेरे मौला अभी ये इफ्तारी का दस्तरखान लग गया और बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इफ्तारी अपनी मुकम्मल हो गई है, सारा काम आज अपना मुकम्मल हो गया है, सालन भी पक गया है और काया काम भी सारा हो गया है। सालन में आपको चेक करवाता हूँ कैसा पका है, चेक करें कैसा पका। अब इसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, खुशबू तो मज़ेदार आ रही है। कोशिश करूँगा कि मैं दुनिया में फैलेगा मेरे मौला तेरा ही दीन। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की माननी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर माननी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे, तो ख़त्म नबूवत की बरकत से हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी खुद भी दीन पर अमल करे, दूसरों तक इसको पहुँचाए, इसके लिए मेहनत और कोशिश करे। तो मेहनत कोशिश करना हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, छोटा है बड़ा है, अमीर है गरीब है, आलिम है आलिम के बगैर है, कोई भी है आम इंसान है, सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों तक इस दीन को पहुँचाने वाला है। तो हिदायत किसके हाथ में है भाई? अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत का। तो इसके लिए माशाल्लाह जो है ये दावत वाले आमाल हैं, रोज़ाना तालीम का करना, और जो है हफ्ते में एक गश्त है, और 2 हफ्ते में 2 गश्त हैं, एक अपनी मस्जिद का एक बैरूनी मस्जिद का, और जो है रोज़ाना मशवरा करना कैसे अपने इलाके के अंदर जो है ऐसी दीन की फ़िज़ा बन जाए, जो नमाज़ पे नहीं आ रहे उनको नमाज़ पे ले आना, कोई बीमार है उसकी आदत के लिए चले जाना। तो इस तरह जो है उसके लिए सुबह मशवरा करना, और जो है हर महीने के अंदर 3 दिन का एहतमाम करना। इसके लिए सारे भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और ऐसी वक्त मिले सीखने के लिए 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना। हर काम सीखे बगैर कोई काम नहीं होता, तो सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अल्लाह पाक मुझे भी इस पर अमल करने वाला बनाए और सब अल्हम्दुलिल्लाह। दो कप चाय आगे मजेदार लच्छी को आपको बोलने की शिकायत नहीं मिलेगी, अच्छी चाय बनाओ। तेरी फिक्र सानू जारी लगे आगे दिन लबन चले सारा। अच्छा यार, सारे साथी मेरी बात सुने, जल्दी से ज़रा ना चाय रख लेते हैं। एक्यूरेट कैसे रखते हैं कैमरा? उसके बाद जौन सा है ना अपना मस्जिद की सफाई जौन सी है ना, ये हमारा काम है। हाँ। इसको मुकम्मल करके फिर उसके बाद रात को हम जाके आज और नफल पढ़े और अल्लाह से अपने मांगे। सारे गुनाह माफ कर दो और करवा लो। आज की रात जी ने जाते सारे गुनाह चाह लो। इस दुनिया में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की साफ़ सफाई सुथराई भी हो गई है और रात का टाइम हो चुका है। अब बस सोने के लिए नीचे जा रहा हूँ, जाके सोता हूँ, 2 नफल पढ़ूंगा, 2 नफल पढ़ने के बाद सो जाऊँगा। सुबह उठना है जल्दी और उसके बाद सुबह मेरा फजर में बयान है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा बयान है मेरा फजर में। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा बयान करें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी रात है आज और आज की ताक रात भी है, तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, मतलब तहज्जुद से पहले उठ जाऊँगा। कुछ दुआ वगैरह मांगेंगे अल्लाह से इंशाल्लाह। आखिरी रात है आज, सुबह फजर के बाद बयान के बाद इंशाल्लाह घर वापस जाना है। सुबह वापस निकल जाएंगे घर और 3 दिन पूरे हो जाएंगे हमारे। 3 दिन में 72 घंटे पूरे करने होते हैं, वो इंशाल्लाह हमारे सुबह फजर के बाद पूरे हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे सुबह इंशाल्लाह फजर के टाइम। मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर ली है और अभी चाय पी रहे हैं। बस चाय पी रहे हैं और थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी जल्दी से अपनी चाय फिनिश करते हैं। उसके बाद हमारा बयान है, कुछ तैयारी करते हैं बयान की। है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस के गम और सख्तियों को मैंने झेलाते। हाँ जी भाई, कासिम भाई हो गई है तैयारी निकलने की? माशाल्लाह तैयारी अब जारी है, बर्तन वगैरह समेटने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अभी फजर पढ़ ली, मेरा बयान था, मैंने बयान किया। वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर सके। हाँ जी मोहसिन भाई, तैयारी हो गई है निकलने की? हाँ जी तैयारी होगी, आगे सोना में। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं और अभी घर वापस जा रहे हैं, निकलने लगे हैं। बस साथी इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद घर निकलना है। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने कबूल किया, बुलाया, आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीखा है, काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। दीन पर चलना चाहिए इंसान को, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दीन के अंदर ही है और उनका के मुबारक तरीक़ों के अंदर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लाजमी आए और सीखें अपने दीन को। ये बड़ा अच्छा एक ज़रिया है, बड़ा अच्छा एक सेटअप है, इसमें पूरी एक तरतीब है। तो जब हम आते हैं, फॉलो करते हैं, उससे हमें समझ में आती है बात। असल में हम चाहे लेक्चर सुन लें या हमें जितना मर्जी कोई भी कन्विंस कर ले, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह के रास्ते में आएंगे। असल काम ही ये है करने वाला। ये जो हम बिज़नेस कर रहे हैं और दुनिया के सारे मामला, ये तो सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी दीन है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमसे अपने दीन का काम ले। आमीन। आप सबको भी कबूल फरमाए, आप लोग भी आए, वक्त लगाएं इंशाल्लाह आपको सारा मौका मिलेगा अगले हाँ, ये मोहसिन भाई भी, आप जब आएंगे ना तो ये मोहसिन भाई से आप आपका मिलना। तारुफ कराएंगे। मोहसिन भाई आपको ये पूरे मज़ेदार खाने बना के और चाय तो मैं ना फर्स्ट क्लास पूरे लेवल की। मीर साहब निकल रहे हैं आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरवजा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह घर की तरफ तैयारी है। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आज मौसम तुम्हारी बात निकाल, हाँ मेरी बाइक तो निकालो यार, हम निकलने की तैयारी करें। ताकि मेरे जेबी से कहाँ निकले। ये तो ताकि है, ये तो ये चाबी है। मेरी बाइक की चाबी आपके पास है ना? ये देखो, ये मीर साहब फुल टाइम निकलने की तैयारी है हैं? बड़ी जल्दी अब तो आप हमें पकड़ भी सकते। तो मीर साहब बड़ी जल्दी नहीं पड़ गई आपको? अब बस ये है कि जल्दी जल्दी पहुंचे। बस
چلیں امیر صاحب شکر اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، قبول کیا، آئے، کام کیا. جتنا جو اس کا حق تھا وہ تو پورا نہیں کر سکے لیکن کوشش کی، تو دعاؤں میں یاد لازمی رکھیے گا. اوکے محسن بھائی جا رہے ہو؟ ہاں جی اوکے جا رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوبارہ. پھر میں آؤں گا نا، پھر ملیں گے. ہاں ادھر جائیں گے، گاؤں میں جائیں گے. میرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا، میرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ، تیرے رستے